So, as we discussed about these two important topics, you can say, out of which order is a kind of experimentally determined quantity, means you can say property of a reaction that आप theoretically या किसी भी एक balanced equation के number of moles reactant species के check करके आप order find नहीं कर सकते. But molecularity of a reaction is a theoretical concept, and it is actually taken from the collision theory. And if a reaction which is taking place in a single step, means if a reaction is elementary reaction, then its molecularity can be, you can say, determined by just looking at the number of stoichiometric coefficients, जितने moles वहाँ पे present है अगर वो reaction elementary step में हो रही है. Because whenever it is asked to give molecularity of a reaction ना, तो obviously elementary step will be given, because molecularity is significant only for एलिमेंट्री रिएक्शन. एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं, जो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्री स्टेप होंगे, उनकी अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है. तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की हम नहीं कर फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट्री स्टेप विल हैव इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी. तो मॉलिक्यूलरिटी इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, बट ऑर्डर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम फाइंड करते हैं फ्रॉम इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो पूरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट मतलब ऑर्डर होता है. इट्स नॉट दैट कि हर एक स्टेप के लिए अलग अलग ऑर्डर बताएंगे आप. एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा, इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप, then you need to just check the slowest step and the number of stoichiometric coefficients present in that, that will be equal to the order of that reaction. But actually we don't know the exact reaction mechanism, हमें देख के तो नहीं पता लगेगा ना, so that is why it is always determined experimentally. Clear? So let us see what in what way order and molecularity of a reaction differ from each other. The order is the sum of parts of concentration terms on which the rate of reaction actually depends, or it is, you can say, expressed in the rate law expression. And molecularity is the number of atoms, ions, or molecules that must collide with each other simultaneously so as to result into a chemical reaction. Because collision theory ke according, whenever particles collide with each other, then only new chemical bonds are formed and products are formed. Order of reaction can be zero or negative भी हो सकता है, fraction भी हो सकता है, means it may be any number. Molecularity of a reaction can not be zero. सिर्फ positive integers ही होंगे, 1, 2 और 3 होती है generally, उसके beyond possible नहीं है. And order of reaction is always determined experimentally. We cannot check it from the stoichiometric coefficient. And molecularity is a theoretical concept, so need not to be checked experimentally. Rather, एक elementary step में जितने molecules reactant के participate कर रहे हैं, तो that will be the molecularity. Condition ये है कि वो elementary step होना चाहिए. It should not be a complex reaction. And it can even have fractional values that I have already told. Order of reaction fractional हो सकता है, but molecularity whole number में होगी, because it is the number of atoms or ions, whatever the reacting species. So it cannot be a fractional number. And order of reaction is, suppose एक complex reaction है, तो जो उसका order होता है वो सारे steps के लिए मतलब overall reaction का order होता है, और that depends on the rate determining step. But molecularity complex reaction के लिए कोई significant नहीं है, because molecularity overall नहीं होती है. It is actually for individual step जो उस complex reaction के चल रहे हैं, हर एक की अपनी अलग अलग molecularity होगी. तो it has no significance for complex reactions. तभी कल जो मैंने definition आपको molecularity की करवाई थी NCERT के according, उसमें specifically mention है number of atoms, ions or molecules participating in elementary reactions, ठीक है, or that colliding with each other in elementary reaction. So it is significant only for single step reactions. Complex reaction के लिए इसका कोई significance नहीं है. So this is about order and molecularity. And next thing is this. So next is rate law equations जो बेटा हमने
किया है कि एक रिएक्शन रेट को किस तरह से हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में एक्सपेरिमेंटली उसको चेक करने के बाद हाउ वी कैन एक्सप्रेस दैट इज कॉल्ड रेट लॉ इक्वेशन. एंड रेट लॉ इक्वेशन कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स. जो आपने पहले अभी देखा है कि रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की कोई भी टर्म हो सकती है 0, 1, 2 व्हाटएवर. तो दैट वे इफ वी राइट रेट इन डिफरेंशियल फॉर्म जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है, तो दैट डिफरेंशियल फॉर्म कैन बी रिटन इन दिस वे. रेट होती है आपकी, अगर हम रिएक्टेंट्स के टर्म में दे रहे हैं तो इट इज माइनस डी आर ओवर डी टी, और डी आर में भी एनी रिएक्टेंट ए बी कुछ भी हो सकता है वो, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू जो आपका रेट दिस इज के ए की पार कुछ मतलब एनी, इट मे बी डिपेंडिंग ऑन जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज होंगी. तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दी मतलब ये जो रिलेशन आ रहा है आपको एक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर चेंज इन टाइम आपको एक रिलेट करना पड़ता है. एंड इन दिस वे वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यूज, तो हमें वो ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने पड़ते हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो कैलकुलेशंस को डायरेक्ट बनाने के लिए और इजी करने के लिए दीज रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस आर इंटीग्रेटेड. तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो है वो डायरेक्ट लिंक बताती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टाइम का के साथ. मतलब उसमें आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन टाइम की जगह डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या थी और अभी क्या है, मींस आपको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यूज एंड टाइम डायरेक्टली, जैसे 50 मिनट्स के बाद अगर रेट कांस्टेंट निकालना है तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप यू कैन गेट फ्रॉम आफ्टर इंटीग्रेटिंग दीज रेट इक्वेशंस. So we have integrated rate law equations for different orders, 0, 1st, 2nd सबके लिए integrate हुई हुई हैं, but हमें जो syllabus में है that we need to go for 0 order and 1st order. So it makes the calculations easy. मतलब हमें यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह प्लॉट नहीं करने पड़ेंगे and we can directly calculate because after integration it links the concentration of reactants, time and K directly. So let us see. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. छोटी सी डेरिवेशंस है बेटा, बट डेरिवेशंस आपको कभी नहीं पूछी जाती. इसकी जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट बिकॉज व्हेन एवर न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड तो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉज ही लगाने पड़ेंगे उसको सॉल्व करने के लिए. तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन सपोज ए इज अ रिएक्टेंट which is changing into product. So if we need to write differential form, rate is equal to K A raised to the power 0 because zero order reaction है तो A की concentration term 0 करनी है आपने. And differential form में अगर हम लिखें minus dA over dt means change in concentration of A over time or in time interval is equal to K A raised to the power 0, which we can write A raised to the power 0 will become 1. So this minus dA over dt is equal to K. ये होगी आपके differential rate equation. Now we need to integrate this. तो integrate करने पे आपको दोनों साइड, और इसको means in this format we can also write dA is equal to minus K dt. Now if we integrate that both side, तो K because constant है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा. dA का इंटीग्रेशन मतलब आप एक dx इंटीग्रेट करते हो तो you get the quantity x ना. तो similarly here you will get integration of dA will be A, that is molar concentration of reactant is equal to minus K constant है, integration dt t हो जाएगा, plus साथ में I जो है that is constant of integration. So that we get when we integrate without limits and all. वो आपको मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा how we integrate that. So that ये इक्वेशन आपके पास जो आई है, अब हमें इसको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि व्हाट वैल्यू, बिकॉज हमारे पास न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कोई वैल्यूज नहीं होंगी. तो यू नीड टू फाइंड आई बाय लाइक आपको टी एट अ टाइम, सपोज जब इनिशियली हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे जो हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेट अस अज्यूम एज इट ए नॉट. ए नॉट इज, ये थोड़ा सा देखो ध्यान रखना, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं बेटा, इफ वी आर डिनोटिंग इट लाइक दिस, आप ये ऊपर 0 लिख रहे हो तो ये उसकी ऑर्डर मतलब पार है, ठीक है. तो आपको यहाँ ये इधर नहीं लिखना 0. ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर लगाओगे तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कि आपने ऑर्डर
पावर प्लेस की है या वट एवर. तो दिस इज ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो टाइम जब स्टार्ट किया था हमने t was 0 एट दैट टाइम a इज इक्वल टू a नॉट, जो आपकी इनिशियली जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ली थी वो. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो वी गेट I इज इक्वल टू, लाइक यहाँ पर हम प्लेस करेंगे दिस a नॉट इज इक्वल टू k. t की वैल्यू 0 हो गई आपके पास बिकॉज टाइम हमने 0 स्टार्टिंग में अज्यूम किया और प्लस i. तो व्हेन दिस फैक्टर विल बिकम 0 तो i विल बी इक्वल टू a नॉट. मीन्स i की जो वैल्यू है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी जब t टाइम हम 0 एज्यूम कर रहे हैं. तो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1. ठीक है, मतलब i की वैल्यू निकाली हमने t को 0 करके और a को a नॉट, बिकॉज जब टाइम 0 है तो a जो होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा. तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ i in equation 1 we'll get this equation number 2. a is equal to minus kt plus a naught. अगेन ये देख लो आप, a जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम जब रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है, जैसे सपोज t 10 सेकेंड पर हम देख रहे हैं या 20, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो उस टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल a. एंड at time 0 initial concentration जो है that is a naught. k is their rate constant. time जो भी numerical में given होगा that you can put here. so this equation is actually you can say एक मैथ्स में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो इक्वेशन y is equal to mx plus c से इक्वेट कर मतलब रिजेंबल कर रही है. तो इफ वी प्लॉट concentration of reactant at y axis and this time at x axis. ठीक है, तो we get the slope जो हमें नेगेटिव स्लोप यहाँ पे मिल रहा है. यू कैन सी द कर्व, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है विद नेगेटिव स्लोप एंड द स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ माइनस के. ठीक है, तो माइनस है दैट इज व्हाई द स्लोप इज नेगेटिव. एंड दिस a नॉट जो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये इंटरसेप्ट जो जहाँ पर ये कर्व इस y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट यू कैन से इज इंटरसेप्ट. और ये जो वैल्यू आएगी कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पर, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो दिस इज हाउ वी कैन plot a curve between concentration of reactant with the time and we get both of these values. आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो स्लोप से एंड a नॉट फाइंड कर सकते हो इंटरसेप्ट से, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो this is I have already told you. Now this equation can also be written in this format. kt is equal to a naught minus a. kt आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो दिस विल बी इन दिस वे, बिकॉज हमें रिलेट करना, समटाइम्स k भी कैलकुलेट करने को पूछ सकते हैं, t भी पूछ सकते हैं. तो डिपेंड्स की वॉट एवर इज आस्क्ड, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस विल बी गिवन, टाइम विल बी गिवन कि इतने टाइम के बाद इतना हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो k की वैल्यू निकालो. तो सिंपली यू कैन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशंस एंड यू कैन फाइंड k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a divided by t, or 1 over t a naught minus a. In any way you can write here. So this is the integrated equation for zero order equation. This equation number 4 you can use, 4 or 3 whatever you can use for calculating k, t or whatever is asked. चारों variables में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है. And if it is given to draw a curve between this, so you can draw like this. Now next thing is half life period. हाफ लाइफ पीरियड एक्चुअली क्या होता है कि एक रिएक्शन जब हाफ कंप्लीट हो जाती है, मींस जब उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ हो जाती है. जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ए नॉट. ए नॉट जब ए नॉट बाय 2 हो जाएगी तो वो जो टाइम होगा एक रिएक्शन का, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड. तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम in which concentration of a reactant reduced to 1/2 of its initial concentration. This is known as half life of a reaction, और इसको represent करते हैं हम T half से. And in kinetics it is very important to know कि
कितने टाइम बाद रिएक्शन में एग्जैक्टली उसका हाफ लाइफ आता है। और समटाइम्स जो रेडियो एक्टिव स्पीशीज होती है ना, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो अपने आप रेडिएशन उनमें से जब एमिट होती रहती है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन अपने आप डिक्रीज होती रहती है। एंड जो रेडियो एक्टिव बहुत ज्यादा एक्टिव स्पीशीज होती है, उनके तो हाफ लाइफ पीरियड्स बहुत सेकेंड्स में भी होते हैं। मीन्स जितना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी उतना टी हाफ उनका कम होता है। तो टी हाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वांटिटी यू कैन से, एंड इट इज इक्वल टू द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब आधी रिएक्शन हो चुकी है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ हो गया। ठीक है, तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। अगर हम उसमें टी को टी हाफ, मतलब इफ वी टेक टी एज टी हाफ, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन जो ए फैक्टर है हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई 2। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि टी जो है हमारा टी हाफ पे है अभी, मतलब अभी हाफ रिएक्शन जो कंप्लीट हुई है उस टाइम पे जो टाइम है वो टी हाफ है, एंड उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या एट टी हाफ, द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट वुड बी हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि हम डेफिनेशन यही दे रहे हैं कि जब रिएक्टेंट 1/2 तक पहुंच चुका है, मतलब जितनी उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी एग्जैक्टली हाफ हो चुकी है, तो ए एट टी हाफ कैन बी डिनोटेड बाय ए नॉट बाय 2। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इक्वेशन में प्लेस करते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, तो यहाँ हमें टी की जगह पे टी हाफ पुट करना है, एंड इन प्लेस ऑफ ए वी नीड टू पुट ए नॉट बाय 2। तो आवर इक्वेशन विल बिकम्स kt half is equal to a naught minus a naught by 2। तो a naught में से half a naught चला जाएगा, तो obviously it will be left with half a naught, and you will get this equation t half की टर्म में, because अगर हमें t half कैलकुलेट करना है किसी रिएक्शन का, तो a naught over 2 और k जो आपका यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो a naught by 2k is the final equation to calculate हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और आप इस इक्वेशन को अगर देखो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ए नॉट। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो, ज्यादा लेते हो अमाउंट में, तो टी हाफ हायर होगा, एंड इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज lesser means it is directly related. You can see it's if we plot a curve between t half and initial concentration, it gives you a straight line, and this half life period is inversely related to rate constant। जितना rate constant ज्यादा होगा एक रिएक्शन का, उसका t half उतना ही कम होगा। तो this equation number 5 इज, तो आपको बेटा दो इक्वेशंस याद करनी है। ये थर्ड वाली, मतलब जो एक हमारी जिससे हमने कर्व भी प्लॉट किया, व्हाटएवर, एक इक्वेशन कोई भी याद कर लो, उसी को आप फॉर्म चेंज कर सकते हो। kt इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, और उसी से टी हाफ डिराइव करना है। तो दीज टू इक्वेशंस आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एनी वेरिएबल, लाइक आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। अगर उस रिएक्शन को सपोज कितना भी, जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक रिएक्शन 35% कंप्लीट हो चुकी है, तो रेट कांस्टेंट गिवन है, और टाइम निकालने की कितना टाइम लगेगा उसको 35% कंप्लीट होने में, तो डायरेक्टली यू कैन मेंशन ए नॉट को 100% एज्यूम कर लो, ए 35% ले लो। मतलब परसेंटेज साइन नहीं लगाने, 100 और 35 ले सकते हो। मीन्स जितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है उतना उसको परसेंटेज में लेके, मतलब उस परसेंटेज को ही आप कॉन्सेंट्रेशन में या कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, और अदरवाइज डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशंस कैन आल्सो बी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड के या तो पूछते हैं, या फिर के गिवन होता है तो टाइम भी पूछ सकते हैं। और अगर ये दोनों फैक्टर्स गिवन है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची है रिएक्शन की, रिएक्टेंट की, दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड। और टी हाफ मे बी गिवन टू फाइंड वैल्यू ऑफ के और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, or these two values can be given to find half life period. So this is how we can calculate. तो derivations आपको integration वाला step वैसे तो easy है, कोई problem नहीं है, but if you don't want to learn that, तो at least ये दो equations zero order के लिए आपको याद रखनी है। ठीक है, any doubt in this zero order reaction? So next is integrated rate law for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेटा आपको पता है रेट जो है वो जो रिएक्टेंट की पावर 1 के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज ए रिएक्टेंट इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट बी,
तो rate law expression can be written as rate is equal to k a raised to the power 1. And if we write its differential form, so in differential form we can write minus dA over dt is equal to k मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब एक ही टर्म पे डिपेंड कर रही है. एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें इक्वेशन को, तो डी ए ओवर ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने एक तरफ कर ली और नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड माइनस के डी टी. दिस इन दिस फॉर्म वी कैन ऑल्सो राइट. नाउ वी on integrating both sides we can write in this format, and after integrated dx over x को जब आप इंटीग्रेट करते हो बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ x उसका फैक्टर आता है. ठीक है, तो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के डी टी. के कांस्टेंट है और dt का जो इंटीग्रेट करने के बाद t आएगा एंड प्लस i इज द कांस्टेंट. अगेन हमको i जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें t इनिशियल पे जाना है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट किया ही है हमने, टाइम t0 a can be denoted by initial concentration. So if we put these two values in this equation 1, we'll get natural log a naught is equal to minus k. t0 आ गया तो ये factor 0 हो जाएगा, तो I will be equal to natural log of you can say a naught. अब ये I की जगह आपको ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन में, तो you will get this equation 2, and this equation again you can say it can be related with y is equal to mx plus c. And if we plot a curve between this natural log of a versus t, तो again आपको नेगेटिव स्लोप जो मिलेगा वो k की वैल्यू हो जाएगी, and intercept will give the value of initial concentration. And अब इस नेचुरल लॉग को हमें बेटा कन्वर्ट करना है लॉग टू द बेस 10 में, तो हमें इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन फैक्टर्स को. तो पहले इस इक्वेशन को हमने k के लिए सॉल्व किया है, एंड लेटर ऑन अब ये जो टर्म अपने kt को पॉजिटिव किया तो ये नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट माइनस लॉग ऑफ a आ गया आपके पास. अब आपको पता है लॉग में जब हम नेगेटिव सॉल्व करते हैं तो मतलब नेगेटिव का मतलब ये कि अगर आप कॉमन लॉग ले रहे हो तो यू कैन डिवाइड दीज टर्म्स ना. अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो प्लस में हो जाता है, और डिवीजन मतलब नेगेटिव होगा तो आप उसको डिवाइड फैक्टर्स में कर सकते हो. तो इन दिस वे दिस इक्वेशन कैन बी रिटन. नाउ इफ वी कन्वर्ट इट इनटू लॉग टू द बेस 10, तो दिस विल बी kt इज इक्वल टू 2.303 से आपको इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट kt इज इक्वल टू 2.303 log to the base 10 a naught over a. मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन होती है, इन दोनों का रेशियो का लॉग लेके अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट दैट वैल्यू ऑफ kt. और अगर आपको k फाइंड करना है तो 2.303 over t log a naught over a. So this is the equation which we use in numerical problems for first order reaction. ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई लॉग नहीं है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको जो भी चीज कैलकुलेट करनी होगी, यहाँ पे टी भी पूछ सकते हैं, के, और समटाइम्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैन बी आस्क्ड और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. तो एनी फैक्टर आउट ऑफ दीज 4. मतलब आपको ये कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है एक डायरेक्ट रिलेशन देता है कॉन्सेंट्रेशन, टाइम और के में, जहां आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम, तो it becomes difficult to calculate the things, और एक तरह का sometimes we need to draw plot and all, but यहाँ direct आप calculate कर सकते हो. तो that is why for calculations and numerical values it is always like suggested that integrated rate laws should be used. So now we see the curve for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा भी ये जो कर्व है हमारा नेचुरल लॉग, अगर हम इसको लॉग टू द बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बट इन एनसीईआरटी द कर्व इज गिवन इन दिस नेचुरल लॉग फॉर्मेट. तो ऑब्वियसली दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिलेट हो रही है, तो वी कैन प्लॉट अ कर्व y एक्सिस पे लेना है अपने लॉग ऑफ a, एंड x एक्सिस पे आपको टाइम लेना है. तो विल हैव अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप and slope will be equal to minus k.
अगर आप log to the base 10 में ये कर्व प्लॉट करते हो तो आपको स्लोप जो होगा वो -k ओवर 2.303 की वैल्यू देगा. डजंट मैटर, वो 2.303 फैक्टर इसको मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है ना. तो वो फैक्टर यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा. अगर आप ग्राफ में log to the base 10 कंसंट्रेशन मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसका log to the base 10 प्लॉट कर रहे हो तो स्लोप विल गिव यू -k over 2.303. If you are putting the values of natural log of a, then slope will give you the value of -k, and intercept will give you the value of natural log of this a naught, initial concentration. Next is half life period of फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब हाफ लाइफ के लिए हमें फिर से t को t हाफ लेना है और उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन होगी a, दैट विल बी इक्वल टू a नॉट बाय 2. क्लियर. जब टाइम जैसे सपोज हमने 0 मिनट से स्टार्ट किया था और जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई उस टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं t हाफ. तो t हाफ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू a नॉट बाय 2. तो पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज इन दैट इक्वेशन 3 which we have derived, and k is equal to 2.303 over t log a naught by over a. This is our equation which we have derived by integrating that first order rate law and putting values of t and a for half life period. We'll get k is equal to 2.303 over t half. t की जगह t half लिखना है और इस a की जगह आपको a naught by 2 लिखना है. तो a naught over a naught by 2, a naught कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो दैट क्वांटिटी विल बिकम log 2. ठीक है. तो दिस इक्वेशन विल बी k is equal to 2.303 t over t half log of 2, and log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. So you can put this value and both of these quantities on multiplying you will get 0.693. ये फैक्टर जो आपको मिल रहा है मतलब इक्वेशन आपकी आ गई t half is equal to 0.693 over k. तो ये रिलेशनशिप से आपको क्लियर हो रहा है कि जो t हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि a नॉट टर्म आ ही नहीं रही. और आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में a नॉट बाई 2 के आया था ये t हाफ की वैल्यू. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस half life period is directly proportional to initial concentration of reactant, but half life period of first order reaction is independent of initial concentration of reactant. So if we plot a curve between t half and a naught, so it will give you a straight line parallel to x-axis. Means और ये इस तरह के ग्राफ में इसलिए डिस्कस करूं because sometimes in your competition exams or even in MCQs in board also they give graph and they ask to identify the order of the reaction. तो आपको ग्राफ्स थोड़ा सा माइंड में रखने हैं कि किस चीज में प्लॉट किए. मैं सबसे पहले तो ये देखो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है तो आपको वो वाली इक्वेशन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है उससे चेक करना है. वो जनरली दोनों के लिए इस तरह की नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन है, बट आपको चेक क्या करना है उसमें कि वो लॉग और कॉन्सेंट्रेशन की टर्म का लॉग लेके टाइम के साथ प्लॉट किया या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है. ठीक है. तो वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा. बाकी शेप ऑफ ग्राफ इज सेम. और हाफ लाइफ के लिए ग्राफ होगा तो टी हाफ और ए नॉट में अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो दैट पॉजिटिव स्लोप वाली तो वो जीरो ऑर्डर के लिए है. बट इफ यू गेट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर के लिए आपको अभी 12th में करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो आपको मिल जाएगी. रेफरेंस बुक्स में तो नहीं होगा बट समवेयर मे बी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे कैन डिस्कस समवेयर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आल्सो, बट नो नीड टू गो फॉर दैट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर जेई मेंस और नीट. किसी में भी आपको सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या ग्राफ नहीं पूछे जाएंगे. यू विल बी आस्क्ड ओनली फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और उसमें से भी ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स है आपकी एनसीईआरटी के भी बैक एक्सरसाइज में सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए भी बहुत कम है. ठीक है. तो t half is equal to 0.693 over k. This equation is used to calculate t half और sometimes t half is given k पूछ सकते हैं, दोनों ही चीजें हो जाएंगी. And this equation is used to calculate k or t or a naught a whatever.
So these two equations you need to memorize. आपको integration, again I am telling you, derivations of integrated rate law will never be asked in exams. Only reactions, numericals and graphical representations are important. Graphical representation for short questions, and numericals, so you know that variety of numericals are there in your books as well. So this is a summary of these rate law for zero and first order. You can compare. Rate law है rate is equal to K independent of concentration, and first order के लिए rate is equal to K and linear relation with concentration of reactant A. And बेटा एनसीईआरटी बुक में इसको A की जगह उन्होंने रिएक्टेंट R लिया हुआ है, तो आपको इस A की जगह R मिलेगा, हर जगह पे R R नॉट. तो डोंट गेट कंफ्यूज. A लो R लो, वट एवर यू कैन टेक, सिंबल से कोई मतलब नहीं, आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. इफ यू आर राइटिंग R और A विदाउट राइटिंग नॉट, तो वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की एट टाइम T, जो टाइम गिवन है उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन. और इफ यू आर पुटिंग नॉट, तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जो स्टार्ट किया रिएक्शन जिस टाइम पे. वेदर यू कैन राइट इट आर नॉट और ए नॉट, डजेंट मैटर. सिंबल्स कोई जगह पे आपको इस इक्वेशन में ए नॉट की जगह पे एक्स, या मतलब समवेयर दे हैव यूज्ड सम अदर टर्म्स आल्सो, बट आई फाउंड इट इजी कि ए आप एक रिएक्टेंट ले रहे हो विच इज चेंजिंग इनटू बी. मैंने सारी आपको ऑर्डर वाली भी रिएक्शन सब में ये ए ही यूज किया है, तो आई एम यूजिंग इन दैट वे. बाकी इट्स योर विश, यू कैन यूज आर एज वेल एज और सम अदर टर्म, जो भी आपको ठीक लगता है. मेन आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, अब उसमें सिंबल आर है, ए है, दैट डजंट मैटर. Plot needed to give a straight line. It's concentration of A versus T, and it is natural log of concentration versus T. And relationship of rate constant to slope of straight line. Slope gives you the value of minus K. And if you are putting, if you are plotting curve between natural log, तो इसका भी slope minus K के equal होता है. But अगर आप log to the base 10 और A का curve दिया हुआ है, तो उसमें slope minus K over 2.303 के equal होगा. ठीक है. Half life period T half for zero order A naught by 2K, and for first order it is 0.693 over K. This is very important to learn that T half is directly proportional to concentration of reactant. Initially क्या ली थी, half life उससे related है, but यहाँ half life period is independent of initial concentration of reactant. उससे कोई मतलब नहीं आप initially कितना ले रहे हो. टी हाफ मतलब इन रिएक्शंस में जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ पीरियड, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही. आप कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन लेके रिएक्शन स्टार्ट करो, हाफ लाइफ पीरियड सेम टाइम पे ही मिलेगा आपको. बट यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करेगा आपने इनिशियली कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया. क्लियर. बट दोनों में ही एक इनवर्स रिलेशनशिप है के के साथ, वो सेम है. बट और एनी डाउट इफ यू हैव इन दिस integrated rate equation, so just you can tell me. Two zero and first order, only two order, for two orders you need to do these integrated rate laws. तो next तो एक simple numerical है, बाकी numerical अभी आज time नहीं है, तो tomorrow we'll discuss. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 35% कंप्लीट हो चुकी है. 35% कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, आपने एज्यूम करना है कि इनिशियली हमने 100% लिया था रिएक्टेंट, तो 35% कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट कितना बचेगा, 65%. तो इधर यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट एज 100 एंड ए जो टाइम टी पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो 35, या फिर आप 1 मोल लेके उसको 0.65 मोल कर दो. इन बोथ वे यू कैन गो, नो नीड टू गेट कंफ्यूज. जितनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है उस परसेंटेज को आप कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर लो. 100 माइनस 35, 65% रिएक्टेंट इज लेफ्ट आफ्टर 55 मिनट्स इन दिस रिएक्शन. टाइम इज गिवन इन मिनट्स, तो आप के की वैल्यू अगर यहाँ सिग्निफाई नहीं की हुई है कि सेकेंड्स में निकालना है, तो आप इसको मिनट्स ही रहने दो, नो नीड टू कन्वर्ट. यहाँ काइनेटिक्स में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूरत ही नहीं है टाइम को कन्वर्ट करने की. इफ टाइम इज गिवन इन मिनट्स यू कैन गो फॉर कैलकुलेशंस इन मिनट्स. ईयर्स में दिया, ईयर्स में निकाल दो, नो नीड टू कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड्स. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड.
मेंशन किया हुआ है, या अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आंसर में यूनिट्स चेक कर लो, सेकंड में गिवन है, किस में गिवन है, तब आप कन्वर्जन करो. बट फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मेंशन नहीं है और ऑप्शनल भी नहीं है, मतलब एमसीक्यूज नहीं है, आपको आंसर आपकी चॉइस है, आप पर मिनट में भी दे सकते हो टाइम, पर सेकंड में भी, और whatever is the time given in the question. ठीक है, तो we'll go for first order reaction है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k is equal to 2.303 over t log of a naught over a. तो अगेन आपको मैंने बताया आपके पास चॉइस है, a naught आप ले लो 100, a 100 minus 35 65. ठीक है, आई हैव टेकन इन दिस फॉर्मेट. a naught इज सपोज 1 मोल पर लीटर था, तो 35% कंप्लीट होने के बाद a बचेगा कितना आपका, 1 में से 0.35 माइनस कर दो, यू विल गेट 0.65. ठीक है, तो सॉरी ये r नहीं है, दिस इज a. a is equal to this final concentration is 0.65 mole per liter. Put these values. t आपके पास है 55 मिनट, k आपको फाइंड करना है 2.303 over 55 log 1 over 0.65. अब आप इसको log 100 over 65 भी कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, log 100 की वैल्यू 2 है, तो log 100 माइनस log 65. ठीक है, 100 की वैल्यू तो 2 है और 65 की है, आप लॉग टेबल से चेक कर सकते हो. एक ऑप्शन ये है. अदरवाइज 100 over 65 को आप पहले सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे 65 से डिवाइड करोगे 100 को, उसका लॉग टेबल चेक कर लो. तो बेटर होता है लॉग वैल्यूज में कि आप ये डिवीजन भी मत करो, टाइम आपका कंज्यूम होगा. जो दो फैक्टर्स यहाँ पे हैं, इसको log 100 हमने लिया है माइनस log of 65. दो log 100 नो नीड टू चेक. ठीक है, log 65 चेक करो और log 102 माइनस दिस करके सॉल्व कर लो. तो एक आपका डिवीजन कम हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप log ये इसको नेगेटिव टर्म में ले लेते हो तो. बाकी अदरवाइज इट्स योर विश हाउ यू सॉल्व दैट, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, तो अगर मेंशन नहीं है कि k की वैल्यू पर सेकेंड या पर